Hello, hello, dear students. Today we shall discuss about the matrix. In our last video, we all discuss about the theoretical part of matrix. All you also know that what content should be required to study of this matrix. General brief just I would like to take. We have discussed order of a matrix and the expression of a matrix, rectangular arrangement of a numbers or a real valued function is called matrix. This we have discussed. Order we have discussed. Type of matrix we have discussed in our last class. Zero matrix, row matrix, column matrix, square matrix, diagonal matrix, scalar matrix or identity matrix. Thereafter we should discuss about addition or subtraction of a two matrix. Thereafter we shall discuss the multiplication of two matrix. Next we have discussed whenever transpose of a matrix, how we can calculate its transpose. And the last but not least, we have already discussed with an example skew symmetric matrix or symmetric matrix, right? Now one of the example from the exercise, that is I think 3.2, from where I will take question number 13, that is given. 13 number question, what it is, that is given. Question that I write on the board, capital Fx, that is given. Capital Fx is cos x minus sin x 0, cos x minus sin x 0, and thereafter sin x cos x 0, sin x cos x 0, and the last 0 0 1, it is given, right? और कहा गया शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, शो दैट, क्या कहा गया, शो दैट एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इक्वल कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई. वी जस्ट राइट टू शो लाइक दैट. तो अभी हमें क्या करना है, देखो एफ एक्स इज गिवन एंड द matrix that is given and the product of two matrix which is equivalent to the f of capital F of x plus y. So we shall start the work. F of x is given. Now we should require for left work, left hand side we required y. So where x is written in the above given matrix, we should replace this x by y. Now we will describe the fy, which is cos y minus of sin y 0, and again there is written sin y, it is written cos y 0 0 0 1, that is fy. Is it clear? Now we shall product them. प्रोडक्ट कैसे करेंगे, हमने लास्ट क्लास में स्टडी भी की है और अभी हम प्रोडक्ट करते भी हैं प्रॉपरली. एफ ऑफ एक्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है. देखो प्रॉपर वर्क करना है, पहली चीज़ ध्यान रखो, वर्क अगर प्रॉपर होगा तो रिजल्ट भी राइट आएगा. कुछ स्टूडेंटों की थ्योरी होती है कि हम डायरेक्ट कर लेते, क्या, अरे डायरेक्ट वर्क करने का मीनिंग आप जानते हो, यू जस्ट वांट टू थिंक योर सेल्फ दैट आई वुड बी ए वेरी स्मार्ट. स्मार्ट कौन होता है, आज कोई स्मार्ट होता है कि आज के टाइम में, नो वन विल बी स्मार्ट. Your work will be make you smart. Only your work. तो वर्क तो जब करोगे तभी तो पता चलेगा. Whenever you do your work, then you will be in notice that that particular student having a knowledge about it. He can solve the question properly. He has the proper manners to describe that question. So this is the identification. तो पहली चीज़ हमें वर्क करना है, ये थ्योरी हमें दिमाग में सेट करनी है. वी हैव टू डू द वर्क. डोंट बी सेव योर सेल्फ, अपने आप को बचाएं नहीं, वर्क करें. अब प्रोडक्ट करना, देखो अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे प्रोडक्ट करना, प्रोडक्ट तो हमें आता है, अरे आता तो सब कुछ है पर प्रोडक्ट करना है, इट मीन्स वी हैव टू डू.
पहले देखें प्रोडक्ट करना है तो क्या ऑर्डर का वर्क सही है, तो ये तो देखो प्रोडक्ट करना है इन्होंने दिया हुआ है, इट मीन्स तो फिर वो ऑर्डर सही देगा आपका। तो नई जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, 3x3 की आएगी, राइट। तो अब 3x3 की आएगी तो एग्जैक्टली क्या इस एरिया में वो आ जाएगी, नहीं आती है तो थोड़ा सा हम एरिया इसका एनलार्ज कर लेते हैं, ठीक है, 3x3। अब मैंने प्रोडक्ट क्या बताया था आपको, ये फर्स्ट रो प्रोडक्ट विद द कॉलम 1 यहाँ लिखोगे, फिर फर्स्ट रो प्रोडक्ट विद कॉलम 2 यहाँ पर लिखा रो 1 इंटू कॉलम 1, यहाँ पे रो 1 इंटू कॉलम 2, यहाँ पे रो 1 इंटू कॉलम 3, यहाँ पर क्या होगा रो 2 इंटू कॉलम 1, यहाँ रो 2 कॉलम 2, रो 2 कॉलम 3, रो 3 कॉलम 1, रो 3 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, लाइक दैट। ये आपको लिखना है। अब आप लिखें, सॉल्व करें। तो हमने मैट्रिक्स प्रोडक्ट पहले कर लिया, अब हम प्रोडक्ट यहाँ कर लेते हैं। क्वेश्चन आपके पास है ही, हमने कौन सी साइड स्टार्ट की है, लेफ्ट, तो आप LHS लिख कर आएंगे क्वेश्चन में, राइट LHS। हमने जो वर्क स्टार्ट किया है दैट इज टू बी लेफ्ट हैंड साइड, राइट। अब प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ कर लेते हैं प्रोडक्ट हम, रो 1 इंटू कॉलम 1, इसको इससे प्रोडक्ट कैसे करना है, इसको इससे प्रोडक्ट करना है, प्लस इसको इससे प्रोडक्ट करना है, प्लस इसको इससे प्रोडक्ट करना है, और यहाँ प्लेसिंग करनी है। तो फर्स्ट cos x cos y पहला एलिमेंट प्रोडक्ट हो गया, फिर प्लस माइनस साइन एक्स साइन वाई, तो प्लस माइनस माइनस ही हो गया, इज इट क्लियर, प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 दैट इज 0, तो नीड नॉट टू राइट। अगेन रो 1 कॉलम 2 cos x साइन y, तो माइनस cos x साइन y माइनस साइन x cos y माइनस साइन x cos y, and 0 product with 0. Now come on third, चलो थर्ड पे चलो, ठीक है। थर्ड पे क्या लिखेंगे, cos x इंटू 0 माइनस साइन x इंटू 0 इंटू 1, देन द रिजल्ट इज 0। सबको क्लियर है यहाँ तक। अब अगले वर्क पर आप आ जाएं। अब क्या करेंगे, पहला वर्क कंप्लीट हो गया, रो 1 कॉलम 1, रो 1 कॉलम 2, रो 1 कॉलम 3, रो 2 दैट इज दिस इज द रो 2, रो 2 कॉलम 1 साइन x cos y, साइन x cos y, cos x साइन y, cos x sin y, देन 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ठीक है, प्लस में करोगे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। रो 2 कॉलम 2 साइन x साइन y माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y, राइट। थर्ड पे चलते हो, साइन x 0 प्लस cos x 0 प्लस 0 इंटू 1 दैट इज 0। नाउ कम ऑन थर्ड रो, दिस इज द थर्ड रो, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस 0 1, टोटल रिजल्ट इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0 0 1 0 0 अगेन 0, फिर 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मीन्स 1। दिस इज द फाइनल मल्टीप्लिकेशन ऑफ fx into fy that we shall get like that. Is it clear? सबको क्लियर है ये चीज़ कि अभी हमने दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट किया दैट वी शुड राइट लाइक दैट। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड करके अब आप लिख सकते हो, आइडेंटिटी इन क्लास 11 दैट वी हैव स्टडीड, हमने क्या आइडेंटिटी स्टडी की, जो 11th क्लास में आपने स्टडी की है, वहाँ पर कुछ आइडेंटिटीज थी
तो वहाँ एक आइडेंटिटी थी अपने पास कि कॉस ए प्लस बी को अगर एक्सप्रेस करना होता तो आप लिखते कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये आप कॉस में एक्सप्रेशन करते। अगर माइनस आता तो यहाँ प्लस ले लेते। साइन में अगर आपको ए प्लस बी ए माइनस बी ओपन करना प्लस करते तो क्या लिखते साइन ए कॉस बी plus cos A sin B. If there is a minus, then there is a minus. So similarly, these two formulas are applied here in the given question, and it will be converted into the new format, that is accordingly cos A cos B minus sin A sin B. So it will be written cos A plus B, meaning A is x and B is y, then it should be written cos x plus y. Now in second part there is given this. In both of them we can take minus is common, right? Then this will be written cos x sin y plus sin x cos y, which is written minus of sin x plus y. Is it clear? And third element is 0, that we should write same. Clear? Now there is again sin A cos B plus cos A sin B, that is also sin A plus B. Clear? Now in next there is a cos A cos B minus sin A sin B, which is written cos A plus B. Then this will describe like that, and third one is 0 0 0 1. So this is the result of left side. Now the right part of this question is given. Right part, that is we shall prove that is equivalent to the right part, and this is the left side of the question that we have calculated here. Now come on right part. RHS is, this is LHS. LHS we have concluded. Now RHS is f capital X plus y. तो जहाँ x में f of x is given, where x is to be substituted by x plus y, then this f x plus y is written. क्या लिखोगे? cos x की जगह x plus y लिख दोगे, ठीक है? माइनस ऑफ साइन x plus y 0 साइन x plus y cos x plus y, there is 0 0 1, which is equivalent to the left side. So this is to be proof of this question. We shall write LHS equal RHS. Understood all guys how this question is to be solved? Clear? Now let's take another example that is also an important question. Illustration. Capital A is given, that is capital A is given, that is 0 minus tan alpha by 2. कैपिटल ए दैट इज गिवन. तो क्या दिया गया है? कैपिटल ए इज गिवन, दैट इज 0, 18 नंबर क्वेश्चन इज देयर, माइनस ऑफ tan alpha by 2 over tan alpha by 2 0. It is given. Or here is I think 1, no 0, right? That is 0. Now I be the identity matrix of order 2, meaning एक another matrix identity is given जिसका order बोला इन्होंने 2 cross 2 है, या order 2 बोल दे तो भी एक ही बात है, which meaning like that. Clear? Now there is prove that I plus A equal I minus A into I minus A into cos alpha minus sin alpha, cos alpha minus sin alpha, or here is written sin alpha, here is written cos alpha. ये आपको शो करना है, लेफ्ट टू राइट आपको दिया गया है, ठीक है? अब क्वेश्चन को करने के लिए देखो प्रॉब्लम क्या है. देयर इज ए प्रॉब्लम विच इज, दिस इज द लेफ्ट पार्ट, दिस इज द राइट पार्ट, बोथ ऑफ देम वी हैव टू सॉल्व and equal them. Then we will write there left of the question is equivalent to the right of the
question. So students, we shall start the work. Before this, the thing is there, in an answer there is an angle that is alpha, but in a given matrix there is an angle that is alpha by 2, right? तो now start work, right है? चलो start करते हैं. तो लेफ्ट तो आप सम कर देंगे इजी वे में कि लेफ्ट साइड दैट शुड बी वेरी इजी टू ऐड देम. क्या आ जाएगा? दोनों को ऐड करना है. तो एडिशन में हमने क्या कहा? करोस्पोंडिंग टर्म्स को ऐड करना है. ज़ीरो को ऐड करेंगे 1 के साथ तो 1 आ जाएगा. इसको ऐड करेंगे 0 के साथ, देन इट रिमेन्स सेम, इट रिमेन्स सेम. इसको ऐड करोगे 0 के साथ, इट कम्स सेम. और इसको ऐड करोगे, देन दिस इज द लेफ्ट साइड दैट वी हैव कंप्लीटेड. नाउ कम ऑन राइट साइड. ठीक है, लेफ्ट क्या आया ये आपको ध्यान रखना है. और अब राइट पार्ट पे काम करना है आपको. i माइनस ए इंटू मैट्रिक्स ऑफ कोस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा. तो i माइनस ए, सबसे पहले i को i से माइनस करना, a को माइनस करके लिखोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस 0, then it is 1. 0 minus this, then this is positive tan alpha by 2. Again 0 minus this, then minus tan alpha by 2. 1 minus 0, then this is 1. This is the I minus A. Exactly it is same, I minus A. We have done. Clear? Now product with this. Now we shall write here cos alpha minus of sin alpha, downside sin alpha, or there is cos alpha. Now the product is possible because both the matrices are order 2. So the new product will be also order 2. The problem is that in the first matrix there is the angle that is a half of angle alpha by 2, and in the another matrix the angle is alpha. So both of them is to be insimilar. So we will make them similar. अब similar कैसे बना सकते हैं? तो similar बनाने के लिए this is the RHS we are solving, right? We know that cos of alpha that is represented like that. ये हम जानते हैं, ट्रिग्नो में आपने फॉर्मूला स्टडी भी की है. So we should replace cos of alpha equal like that, and sin of alpha that should be replaced by half angle of tan that is to be described like that. Is it? We should write. Clear? Both the formulas to be substituted into the given question at the position of cos and sin. Now start. क्या आ गया देखो? 1 tan alpha by 2 minus tan alpha by 2 1, and this is the cos alpha 1 minus tan square alpha by 2 over 1 plus tan square alpha by 2. Here is minus 2 tan alpha by 2 over 1 plus tan square alpha by 2. Again there is sin alpha that is 2 tan alpha by 2 over 1 plus tan square alpha by 2. Here is cos alpha that we will write like that, 1 plus tan square alpha by 2. The question is in a proper. All the trigonometric functions are in a same angle alpha by 2. Now we shall, this work should be, think that it will be lethargic work, so we will change the tan alpha by 2 in another symbolization, so it's very easy to product of them. Thereafter in last we will again substitute the symbol by tan alpha by 2. So let tan alpha by 2 equal, सपोज टी सपोज कर लिया आपने. क्या कर लिया? टी लेट कर लिया. क्यों किया? फॉर मेकिंग सिंपल ऑफ दिस क्वेश्चन, ओनली दिस, बिकॉज
last we have to substitute this t by tan alpha by 2. 1t minus t1 product with 1 minus t square upon 1 plus t square minus of 2t over 1 plus t square, same 2t over 1 plus t square, here 1 minus t square over 1 plus t square. Is it same? सबको क्लियर है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब प्रोडक्ट करना है आपको. नाउ वी शैल स्टार्ट द प्रोडक्ट. यहाँ तक का वर्क सबको क्लियर है. अब हम प्रोडक्ट करते हैं और अप साइड इसको रब कर देते हैं, क्योंकि इसी का प्रोडक्ट हमें डाउन साइड से करके आना है. नाउ वी शैल स्टार्ट द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. चलो स्टार्ट. इसकी रो इसका कॉलम, इसकी रो इसका कॉलम. स्टार्ट. 1 into this, तो 1 minus t square upon 1 plus t square. t into this plus 2t square upon 1 plus complete. Right? Now again row 1 column 2 product with this, this product with this, and this product with this. Clear? Start. Minus of 2t over 1 plus t square प्लस t इंटू, तो क्या लिख देंगे, t माइनस टी क्यूब ओवर, t का प्रोडक्ट करना है इससे, t माइनस टी क्यूब अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. इज इट राइट? नाउ कम ऑन नेक्स्ट. दिस रो मल्टीप्लाई बाई दिस, तो t को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टी प्लस ऑफ टी क्यूब माइनस टी, ठीक है, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. फिर प्लस 1 को इससे करेंगे तो ये राइट कर देंगे. अब इसको इससे प्रोडक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस 1 को इससे प्रोडक्ट करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. द प्रोडक्ट इज कंप्लीट. नाउ वी विल सिंप्लीफाई, जस्ट सिंप्लीफाई and do work proceed. Continue. चलो सिंप्लीफिकेशन करते हैं. तो क्या आ गया देखो, यहाँ पर 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया, और अगर हम सिंप्लीफाइड करें तो 1 प्लस टी स्क्वायर ही ऊपर आ गया. नेक्स्ट वाले भी चलते हैं. 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम लेते हैं, और अपने पास क्या बचता है, टी माइनस माइनस टी क्यूब माइनस टी कॉमन ले ले तो 1 प्लस टी स्क्वायर आपका इनसाइड बच जाता है. Now come on this term, 2t minus t meaning t, और t plus t cube से t कॉमन ले ले तो 1 plus t square over 1 plus t square. Is it same? Now there t square plus 1 तो 1 plus t square over 1 plus t square. Right है? Now cancel जा हो रहा है, कैंसिल कर ले. 1 times 1 times 1 times और 1 times. नाउ वी शैल राइट अगेन. अब क्या बचता है आपके पास, इसको दोबारा लिख लें. तो क्या बचा, 1 माइनस ऑफ टी, देयर इज टी, देयर इज 1. दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स वेयर टी इज tan अल्फा बाई 2. तो क्या लिख देंगे, 1 माइनस tan अल्फा बाई 2, tan अल्फा बाई 2 और 1. दिस इज द RHS. And this is the LHS. LHS and RHS, match them. Is it same or not? If they are same, then the question be proved equal. Clear? So we shall complete this question. Students, do properly in their copies because this is an important question. Proper solve करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्वेश्चन प्रॉपर करना है. अंडरस्टूड दिस? प्रोडक्ट आपको देखना है, अरेंजमेंट जैसे आगे वर्ड प्रॉब्लम्स इस चैप्टर की, तो वो अरेंजमेंट आपको बनाना होता है कि क्या प्रोडक्ट इस तरीके से पॉसिबल होगा, इनको किस तरीके से लिखें. क्योंकि मैंने कहा था प्रोडक्ट ऑफ ए टू मैट्रिक्स इज पॉसिबल व्हेन एवर द नंबर ऑफ column in the first matrix which is equivalent to the number of row in the second matrix. If it will be in the question, then the product is
पॉसिबल। तो अब आपको देखना है कि जो वर्ड प्रॉब्लम दी गई उसका अलाइनमेंट किस तरह से करें, उसको मैट्रिक्स में कैसे अरेंज करें। दैट्स वाई वी आर एबल टू मेक देम प्रोडक्टिव। तो यहाँ पे आपके कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स भी हैं, तो प्रॉपरली आपको अरेंज करना है। जैसा एक क्वेश्चंस यहाँ दिया गया है कि देर आर, अब आप करना है तो ऑन डिपेंड ऑन योर वर्क, आई थिंक दिस विल बी नॉट प्रॉब्लम फॉर यू। देर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन, one of the some of the MCQ is also given, and out of these two MCQ last year I think both of will be in that exam। तो यहाँ लिखा हुआ है कि कोई डिफरेंट काइंड की मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी। देयर इज एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी, देयर आर डिफरेंट मैट्रिक्सेस एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, and the order of these matrix are 2 cross n, इसका ऑर्डर है, and the next order is 3 cross k, and the next order is n cross 3 cross k 2 cross p, its order 2 cross p, and the order of the w is n cross 3, and the order of p is p cross k. This is the order which is given। और हमें कहा गया कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड वैन एवर, कहा गया क्वेश्चन पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, तो इसमें ऑर्डर चेक करना है। P का ऑर्डर क्या है, देखो प्रोडक्ट होगा कैसे, P का ऑर्डर है P इंटू के, और Y का ऑर्डर है 3 इंटू के। तो अगर पी वाई का प्रोडक्ट पॉसिबल होगा तो क्या होना होगा, K को 3 के इक्वल होना पड़ेगा। पहली चीज़ यहाँ से एक रिजल्ट मिल गया कि K इक्वल 3, राइट। WY की बात करें तो W का ऑर्डर कितना है n क्रॉस 3, और y का ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस k, ये सेम है। तो जो इन दोनों के प्रोडक्ट से जो ऑर्डर बन रहा है दैट इज n क्रॉस k, और यहाँ भी जो बनेगा वो n क्रॉस k ही बनना चाहिए, जो कि बन रहा है p क्रॉस k इन बोथ ऑफ देम, क्योंकि सम कर रहे हो, दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट्स का सम है, समेशन में दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, देन वी आर एबल टू ऐड देम। तो इन केस द k इज सेम सो इट विल बी आल्सो सेम, फ्रॉम वेयर वी कैन कंक्लूड दैट p इक्वल n। तो फ्रॉम बोथ ऑफ देम द रिजल्ट इज k इक्वल 3 एंड p इक्वल, and this is the standard result of this question। I think every student is clear for this question। समझ में आ गया कि पहले आपको इन प्रोडक्ट के देखना है, प्रोडक्टिव होगा तो केस प्रोडक्शन का फॉलो करना है, और देर आफ्टर समेशन की प्रॉपर्टी फॉलो करके चेक कर लेना है कि क्या ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है या नहीं। क्लियर है। एक नीचे क्वेश्चन और दिया गया है, दैट इज 7x माइनस 5z। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया गया है 7x माइनस 5z, और साथ में लिखा हुआ n इक्वल p, देन द ऑर्डर ऑफ n जो है वो p के इक्वल दिया गया है। ठीक है, x का ऑर्डर आप राइट करें, x का ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस n, 7 दिस इज द स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दैट डज नॉट मैटर, वी जस्ट राइट द ऑर्डर ऑफ x मैट्रिक्स and we write the Z matrix, its order is 2 cross P। तो अभी हमने कहा सब्ट्रैक्शन और एडिशन इफ दे आर पॉसिबल वन आवर, कब पॉसिबल हो सकता है, जब उनके ऑर्डर सेम हो। तो क्या ऑर्डर होना चाहिए, अगर हम बात करें यहाँ से, या तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर होना चाहिए था 2 क्रॉस n, या होना चाहिए था 2 क्रॉस p। Both of them are right, but the given the question n equal p, so both of them are right। In option check whether 2 cross n is available or whether 2 cross p is available, both of the answer is right। So in the option, this option is available, so answer of this is 2 cross n। I clear, this question is clear to all of you। So guys, क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्व करें,
देखो क्वेश्चन प्रॉपर सोल्व करेंगे तो कोई पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है कि क्वेश्चन कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करें। तो सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो प्रॉपर करें, और इस मैट्रिक्स में जो पार्ट आपको डिस्क्राइब किया है उसके बिहाफ पर प्रॉपरली सॉल्व करें और क्वेश्चन कंप्लीट करें। थैंक यू वेरी मच।